یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں تمام افواج کے دستوں نے شرکت کی، جبکہ لیڈیز فورس کے دستوں نے بھی سلامی پیش کی، جسے خوب سراہا گیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ تکبیر! تکبیر! پاکستان! تینوں مسلح افواج کے دستوں نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ صدر سلام! سلام! ایف سی بلوچستان، پاکستان رینجرز اور کشمیر ریجمنٹ نے پریڈ میں شرکت کی۔ پہلی بار کوسٹ گارڈز اور بلوچستان لیویز، پاکستان پولیس کے دستوں نے بھی پریڈ میں شرکت کی۔ دہشت گردی اور خاص طور پر آپریشن رد الفساد میں پاکستان پولیس کا کلیدی کردار۔ پاکستان لیڈیز فورس کے دستے نے بھی پریڈ میں شرکت کی، جس میں بحریہ، فضائیہ اور بری افواج کے ساتھ اے این ایف اور اسلام آباد پولیس کی خواتین، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے دستوں نے بھی شرکت کی اور سلامی پیش کی۔ وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ تنتنا جو گرل گائیڈز کی پہلی پیٹرن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا۔ لیسٹر میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے استقبال رمضان کے حوالے سے پروقار تقریب سجائی گئی، جس میں ٹرسٹ کے فلاحی کاموں، رفائی منصوبوں کو بے حد سراہا گیا۔ تقریب میں مسجد اقصیٰ کے امام شیخ عمر القسوانی نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا دنیا بھر کے مسلمانوں کو موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں باہمی روابط کو بڑھانا چاہیے۔ تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں وسیم قاسمی اپنے اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی پاکستانی کمیونٹی اور علاقے کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کاروباری مسلم کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مسجد الاقصیٰ کے امام شیخ عمر القسوانی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ دوسرا بڑا اسلامی مرکز ہے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے مسلمانوں کو فلسطین جانا چاہیے۔ وہاں کے مسلمانوں کو دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے رابطوں کی اشد ضرورت ہے۔ شیخ عمر القسوانی کا کہنا تھا کہ وہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور اب برطانیہ میں اپنی کمیونٹی سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ تقریب میں کونسلر سابق میئر لیسٹر ملک غلام مصطفیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چیئرمین ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد اور ان کی ٹیم کو لیسٹر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے امام شیخ عمر القسوانی کی موجودگی ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ عبدالرزاق ساجد نے شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرسٹ نے گزشتہ 10 برسوں میں 1.5 لاکھ نادار لوگوں کی آنکھوں کو روشنی دی ہے۔ آپ لوگوں کے احتیاط سے ہم نے اپنے آپریشن میں اضافہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ آپریشن ہم اگلے 5 سالوں میں کریں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 1.5 لاکھ آئیز کے موتیے کے سفید موتیے کے آپریشن مکمل کرنے کی جو کمپین ہے، اس سلسلے میں یہاں پہ ایک تقریب ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ جو کمپین ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی، یہ پورا سال جاری رہتی ہے۔ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک، کشمیر تک اور واگا سے لے کے خیبر تک، یہ ان دور دراز علاقوں میں کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں جہاں عمومی طور پہ صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ میں ایک کیمپ کو خود وزٹ کر چکا ہوں اور اس کیمپ کے اندر بعض لوگ جو تھے انہیں 8 گھنٹے پیدل چل کے اس کیمپ تک آئے تھے وہ، اور ان کی 10 12 سال سے بینائی نہیں تھی، تو ان کو ایک نئی روشنی ملی ہے، اور المصطفیٰ کا سلوگن ہے کہ روشنی سب کے لیے۔ فنڈ ریزنگ کیا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ لوگوں کی روشنی، آنکھوں کی روشنی دینے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بہت لوگ آئے، بہت پیسے ان کلینک کو، یہ جو کلینک سے پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اتنی زیادہ غریب لوگوں کی آنکھوں کی روشنی لا کے دیں گے۔ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے لیسٹر کے لیے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے لیسٹر کو چوز کیا کہ یہاں پر یہ سیلیبریٹ کریں 150,000 کیٹریکٹ آپریشنز کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ یو کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ایک مسلمان آرگنائزیشن نے ورلڈ وائڈ اوور 30 کنٹریز میں جو پور لوگ جو اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتے ان کو یہ سہولت مفت میں مہیا کی ہے۔
इमाम और डायरेक्टर मस्जिद अक्सा शेख उमर अल कसवानी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने फ़लस्तीन और पाकिस्तान में जाकर अल मुस्तफ़ा के काम को अपनी आंखों से देखा है। वो यकीन दिलाते हैं कि आपके अतियात ज़रूरतमंदों तक लाजमन पहुँचेंगे। तकरीब में मौजूद लेस्टर की पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, हमारे बच्चों में इस्लामी राह पर चलते हुए फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरबियत के मौके ऐसी तंजीमों की बदौलत मुमकिन हुए हैं। वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम फलाही मनसूबों को सराहते हैं। I hope inshallah they successful with this project because they change the life for who's blind become see again. Jazakumullah khair. I say to everybody who can support Mustafa Welfare Trust, support Mustafa Welfare Trust, and I hope inshallah they successful with their projects. तकरीब के शुरका ने ट्रस्ट की फलाही खिदमात को सराहते हुए हर मुमकिन तावन का यकीन भी दिलाया। वसीम कासमी, 92 न्यूज़, लेस्टर। बर्मिंघम के मकामी होटल में यूरोपियन लिटरेरी सर्कल यूके के ज़ेर एहतमाम रद्द अमल किताब की तकरीब रुनुमाई और महफिल मुशायरा की खूबसूरत शाम सजाई गई, जिसमें यूरोप और बरतानिया भर से उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शौरा कराम ने भरपूर शिरकत की और अपना कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए। उजड़े गुलशन की ये तस्वीर बदलने वाला है कोई पाँव की जंजीर बदलने वाला, और तेरे होंठों से अदा होके संवर जाते हैं, तेरे होंठों से अदा होके निखर जाते हैं। तू है अशार की तासीर बदलने वाला। और शेर देखेगा कि मेरा दुश्मन मेरे हमले से नहीं है खाइफ, मेरा दुश्मन मेरे हमले से नहीं है खाइफ, मेरा साथी है कोई तीर बदलने वाला। बर्मिंघम के मकामी होटल में यूरोपियन लिटरेरी सर्कल यूके के ज़ेर एहतिमाम रद्द अमल किताब की तकरीबी रुनुमाई और महफिल मुशायरा की खूबसूरत शाम सजाई गई। कोरोना पाबंदियों के बाद महफिल मुशायरा की ये पहली खूबसूरत महफिल है जिसमें यूरोपियन ममालिक और बरतानिया के नामवर शोरा, खवातीन और हजरात ने शिरकत करके अपने खूबसूरत कलाम से शुरका को महसूस किया और खूब दाद समेटी। मंजिल की जुस्तजू में तो उठ जाएंगे कदम, मजबूरियों की पाँव में जंजीर देखना। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर, राइटर और शायर इमरान साकिब चौधरी की लिखी गई किताब रद्द अमल की तकरीबी रुनुमाई मुनाकिद हुई। उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने किताब में शामिल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हालात व वाक़यात के मुताबिक किताब को खूब सराहा। तकरीब का एहतिमाम यूरोपियन लिटरेरी सर्कल यूके चैप्टर के डायरेक्टर डॉक्टर निगत इफ्तिखार ने किया। इमरान साकिब चौधरी की शायरी की किताब रद्द अमल की रुनुमाई तकरीब में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ यूरोप का तावन भी शामिल था। ने दिल की दीवारों पर अक्स बुने हैं, जैसे तैसे तन्हाई का जी बहलाना सीख लिया है, और लम्हों की जंजीर को तोड़ा, दुनिया की तरतीब उलट दी। तकरीब का आगाज कलाम इलाही और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसका शर्फ खदीजा दिल नवाज ने हासिल किया। तकरीब के पहले सेशन में किताब की रुनुमाई की गई और दूसरे हिस्सा में इंटरनेशनल मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत मारूफ शायर बासिर सुल्तान कासमी ने की। हमें कौन कौन छोड़ गया, जरा छठे तो ये कर दो गुबार। अब तलक हुए हम उसके वसवसों के असीर, अब तलक हुए हम उसके वसवसों के असीर, किया था जिस पे कभी एतबार। एक मिनट। फिर आज काम से ताखीर हो गई बासिर, फिर आज काम से ताखीर हो गई बासिर, किसी ने हमसे कहा बार बार एक मिनट। जबकि दीगर शुरका डॉक्टर कैसर जैदी, सैयद एजाज सैफी, शगुफ्ता गिमी, राजा शफीक कियानी, सदफ मिर्जा, इमरान साकिब, डॉक्टर निगत इफ्तिखार बर्मिंघम और दीगर ने अपने कलाम के जरिए मुआशरे के कल्चर और रिवायत का नक्शा खींचा। चाप सुनता था मेरी धड़कन की, चाप सुनता था मेरी धड़कन की, मुझसे कितना था आशना पागल।
बोल देता फकत मैं तेरा हूँ, बोल देता फकत मैं तेरा हूँ, बात इतनी तो पूछता पागल। मुशायरे की निजामत के फ़राइज़ डॉक्टर निगत इफ्तिखार ने एहसन तरीके से सर अंजाम दिए। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के दौर में किताब लिखना और किताब में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहम कारनामा है, जो कि शऊर मुआशरे की अक्कास है। हमारा आज का ये प्रोग्राम यूरोपियन लिटरेरी सर्कल और अपने के साथ मिल के हमने इसका एहतमाम किया था। किताब की तकरीब रुनुमाई और मुशायरा था और हमारा मकसद है मोहब्बतों को बांटना, अदब को परवान चढ़ाना और मिल बैठना, ताकि हम अपनी रिवायात को, अपनी तहजीब को, अपनी सकाफ़त को उजागर कर सकें और अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें। बैरूनी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह गई थी। हर जगह पे तो पाबंदियाँ थी, आने जाने पे भी, मिलने जुलने पे भी। तो घरों में बैठ के जो तख्लीक कार लोग थे, उन्होंने ये एक बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने लिखा, और जो काम तहरीर फ़न से मरबूत थे और रह गए थे दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से, वो लोगों ने घर में बैठ के ये सारे काम किए, अपनी किताबें मुकम्मल की। अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्द बड़े प्रोग्राम ऐसे हुआ करेंगे कि जिनमें नई नई किताबें छपी हुई आएंगी, जो इन 2 सालों में लोगों ने घरों में बैठ के काम किया। बहुत अरसे बाद ये तकरीब हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से जो मसाइल थे और लोग अपनी तन्हाई का शिकार थे, तो आज उन्हें मौका मिला कोई इकट्ठे हों, आपस में मिले। कुछ लोगों ने बहुत अरसे बाद एक दूसरे को देखा, तो ऐसी तकारीब होती रहनी चाहिए और हमें बेहद खुशी है हम सबको जो यहाँ आए हैं, और जिन जिन साहब की, हमारे दोस्त की, इमरान साकिब की किताब की रस्म इजरा थी, तो उनको मुबारकबाद। आज की तकरीब के हवाले से भी तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही शानदार मौका है, समाजी भी और अदबी भी, कि हम सब पाकिस्तानियों के मिल के बैठने का मौका मिलता है और अपनी ज़बान और अपनी सकाफ़त और अपने वतन के हवाले से एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है, और ख़ास तौर पे जो अगली जनरेशन हैं उन्हें आगाही होती है अपनी सकाफ़त और अपने कल्चर से। किताब रद्द अमल की रुनुमाई के सिलसिले में ये इजहार है इस बात का कि हम पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं, हमारा रिश्ता अपनी ज़मीन से, अपने अदब से, अपनी ज़ुबान से जो है वो गहरा है, और ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा करता है। कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका मिलता है, और जो हमारी आने वाली नस्ल है उस तक ये इल्म व अदब की जो मीरास है हमारी मुश्तरका, उसको आगे मुंतकिल करने के लिए ऐसी तकरीबात जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। प्रोग्राम के आखिर में मुकर्रीन, शोरा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान को अवार्ड्स ऑफ ऑनर भी पेश किए गए। शुरका का कहना था कि इस किस्म की महफिल का होना वक्त की अहम जरूरत है, ताकि नए शोरा को अपने कलाम पेश करने और दाद समेटने का मौका मुयस्सर हो और उनके अंदर मजीद तख्लीकी काम करने का हौसला भी पैदा हो। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मिला था वो किसी शब के सुहाने मंजर में, मिला था वो किसी शब के सुहाने मंजर में, ये वाकया भी मगर दास्तान सा लगता है। खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत लिखकर 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है। सऊदी फर्मा रवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम तहनीती पैगाम में उनकी पायदार सेहत व आफियत, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी भाइयों की मजीद तरक्की और खुशहाली के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वली अहद नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम तहनीती पैगाम में यौम पाकिस्तान पर सदर को दिली मुबारकबाद दी। वली अहद ने सदर पाकिस्तान की मुकम्मल सेहत व आफियत, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान फोरम की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अहदेदारान ने शिरकत की और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब के इलाके मंतका शर्किया में पाकिस्तान फोरम की जानिब से मुनक्किदा यौम पाकिस्तान की तकरीब से सियासी जमातों के अरकान का कहना था, पाकिस्तान की बका इसी में है कि सियासी, नस्ल, मजहबी और तासुबात से बालातर होकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया जाए, और जिस ख्वाब को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर किया, उसमें मौजूद मौशरती तकसीम का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवान तबका,
اگر متحرک و فعال کردار نبھائے تو ملک کی ترقی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. ہمیں دین اسلام کے روشن پہلوؤں پر عمل پیرا ہو کر بھی پاکستان کے اندر موجود برائیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی کردار ادا کرنا چاہیے. کانفرنس سے پاکستان فورم کے پیٹرن ان چیف رفت رشید عباسی، صدر فیض کلیم، جنرل سیکریٹری صاحبزادہ بشارت اللہ، اسعد فخر الدین، نزاکت علی گجر سمیت دیگر نے خطاب کیا.